तो जवाब दे रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि वाईफाई का एक इंटरफेस होगा, ठीक है, हमारे पास 2G का एक इंटरफेस होगा। 2G क्या है हमारे पास? GSM है। इसके अलावा क्या होगा हमारे पास? 3G का होगा, जो कि UMTS है हमारे पास। 4G का एक इंटरफेस होगा, ब्लूटूथ का इंटरफेस होगा। बाद एक में हमारे पास इंफ्रारेड हमारे पास मौजूद है, तो हमारे पास इंफ्रारेड भी हो सकते हैं। So in the future, maybe these are the things we already have. So in the future, we'll have, maybe we have more than that. And एक example किसी को याद है जो मैंने दी थी? मैंने कहा था कि इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है? Maybe we can have a 60 gigahertz interface. So an interface that is working in the 60 gigahertz network. ये basically हमारे पास क्या है? This is the operating frequency. किसी को याद है operating frequency हम किसे कहते हैं? What's the difference between operating frequency and the bandwidth? वाईफाई जो है हमारे पास, इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या है? 2.4 sir. 2.4 क्या? It's the unit. Gigahertz. Yes, Gigahertz. 2.4 gigahertz. ठीक है, so 2.4 gigahertz is the operating frequency of Wi-Fi. ठीक है, and what is Wi-Fi? This is basically 802.11 network. ठीक है, तो उसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 2.4 gigahertz है। इस 2.4 gigahertz को हम क्या कहते हैं? ISM band. We call it ISM band. Basically, it is a free band. You don't need a license. You don't need a license to operate in this frequency. Similarly, this frequency is also the operating frequency of Bluetooth. तो Bluetooth में भी जब आप ऑपरेट कर रहे हैं, वो भी 2.4 gigahertz में कर रहे हैं, ठीक है। But this 2.4 gigahertz is different from the bandwidth, ठीक है। हमने bandwidth की बात की थी कि bandwidth क्या चीज है? Bandwidth is the difference between the higher frequency and the lower frequency. So we say basically this is a pipe. So bandwidth is basically the size of this pipe. So if you have a larger one, हम कहते हैं कि ये ज़्यादा bandwidth है। अगर ज़्यादा bandwidth है तो इसका मतलब है कि ज़्यादा data भी जा सकता है, ठीक है। But the difference between this frequency and this frequency, so if this is frequency F2 and this is frequency F1, तो हम कहते हैं कि bandwidth हमारे पास क्या है? It's basically F2 minus F1. So difference between the higher frequency and the lower frequency is the bandwidth. ठीक है, this is one of the definition, or maybe amount of data that is passing. अब in terms of data rate भी कह सकते हैं, जैसे हम usually करते हैं PTCL के साथ। हम कहते हैं कि for example ये 1 megabit per second है, तो 1 megabit per second हम कहते हैं कि ये bandwidth है, ठीक है। फिर हमने कहा कि रेन से अफेक्ट भी हो सकती है, और उसकी हमने एग्जांपल भी दी, और हमने कहा कि it can be affected through with the heavy rain. All right, now what is a signal? We say signal is the carrier of the data, and then we say time domain and the frequency domain. Now the time domain and the frequency domain were not discussed, but it is easy. So हम कहते हैं कि टाइम डोमेन हमारे पास क्या है? एक सिग्नल को जब हम टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर ये टाइम होगा, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एम्पलीट्यूड होगा, और एक हमारे पास सिग्नल है, और वो जो है तो वो मूव कर रहा है, और हम कह रहे हैं कि दैट इज बेसिकली अ टाइम डोमेन, ठीक है। दिस इज अ टाइम डोमेन, दिस इज अ सिग्नल रिप्रेजेंटेशन इन टाइम डोमेन। सो वी सी द सिग्नल दैट वेरिएट्स with respect to the time, ठीक है। As the time progresses, the signal is basically oscillating, and that is showing the amplitude as well. Now अगर हम ये कहते हैं कि ये 1 सेकंड है, यहाँ से लेके फॉर एग्जांपल यहाँ तक, this is 1 second, what is the frequency of this signal? I'm asking you a question. So it is something like 2 hertz, sir. Okay, ये इस तरह है. This is 1 second, and this is a signal. It's 2 hertz or 3 hertz? 3 hertz, sir. 3 hertz. 3 hertz, ठीक है.
It's a 3 Hz. So this is one signal, this is another cycle, this is third cycle. So we have 3 cycles in 1 second, and it means the frequency of this signal is 3 Hz. And we can see this signal in the time domain. Now in the frequency domain, all we do is we have the amplitude, but on the x-axis we have the frequency now. पहले हमारे पास टाइम था, यहाँ पर हमारे पास टाइम था, यहाँ पर हमारे पास अब फ्रीक्वेंसी है. तो हम ये कहते हैं कि ये एक 3 हर्ट्ज का सिग्नल है, ये हमारे पास 6 हर्ट्ज का सिग्नल है, यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल 9 हर्ट्ज का सिग्नल है, 12 हर्ट्ज का सिग्नल है. तो यही सिग्नल जो हमारे पास टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट हुआ है, अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करें और हम ये कहें कि यहाँ पर ये जो एम्पलीट्यूड है, फॉर एग्जांपल ये एम्पलीट्यूड हमारे पास 5 है या ये 10 है हमारे पास, हम ये कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कोई 5 एम्पलीट्यूड का भी सिग्नल है, यहाँ पे हमारे पास 10 का भी है फॉर एग्जांपल. तो यही सिग्नल जो हमारे पास टाइम डोमेन में है, अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करें तो इट विल बी जस्ट अ स्पाइक, विल बी जस्ट अ लाइन. ठीक है, इट नीड्स टू बी स्ट्रेट. मैं इसको जरा ड्रॉ नहीं कर सका सही, लेकिन दिस शुड बी अ स्ट्रेट लाइन ऑन 3 बिकॉज दिस एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग अ frequency. Is a 3 hertz signal. So we just, and what is the amplitude? This is 10. So हम 10 की लेंथ का एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे 3 पे, एंड दैट बेसिकली मींस इट्स अ 3 हर्ट्ज सिग्नल. इसी तरह अगर हमारे पास 6 हर्ट्ज का एक सिग्नल है जो कि इसका एम्पलीट्यूड 5 है, तो वी जस्ट ड्रॉ इट लाइक दिस एंड वी कैन डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. So basically we have 3 signals of different frequencies and different amplitude. और अगर हमने ये रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर टाइम डोमेन में यही 3 सिग्नल, तो अब हमें एक, अगर ये 3 का है, ये 10 है, तो यहाँ पर हमारे पास 5 का होगा, और हमने एक दूसरा सिग्नल ड्रॉ करना होगा जो कि हमारे पास 6, जिसमें 6 साइकिल्स होंगी. ठीक है, so let's pretend it's 6 cycles, and then we can have a 9 another signal that has 9 cycles, so another signal, and then we will have 9 cycles in it. So yeah, basically it is kind of a messy, you can see. So in a time domain we can also have all those signals, but it will be also a little messy, it will also take a lot of space, but here it may be very clean. तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन है हमारे पास, एक सिग्नल को हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और टाइम डोमेन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, आई विल रिपीट अगेन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीस थिंग्स. ठीक है, बट मे बी मैं पिछली दफा ड्रॉ नहीं कर सकता था, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू ड्रॉ इट एज वेल. ये चीजें हमने डिस्कस की. फिर इसके अलावा हमारे पास अच्छा, फ्रीक्वेंसी यू ऑलरेडी नो. व्हाट इज अ फेज, टाइम पीरियड एंड वेवलेंथ? You should already know. Maybe we can just, I can just ask you about the phase. ये phase क्या है? एक signal का phase क्या होता है? Starting point, start phase. Starting point of the signal. So we have a axis. For example, this is our axis, and we say the signal is starting like this. So this is a phase 0. ठीक है? और अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये signal है और ये ऐसे start हो रहा है, starting point. So हम कहते हैं कि ये 90 degrees का है. तो डिग्रीज में हम इसको करते हैं, ये 0 डिग्रीज का, इसका 0 का फेज 0 है, इसका फेज 90 है. सिमिलरली वो नेगेटिव से स्टार्ट हो सकता है, वो 180 होगा. या अगर हम ये कहते हैं कि इफ इट इज फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग लाइक दिस, तो इट इज 180. और सिमिलरली अगर वो नेगेटिव उसमें जा रहा है, फिर ऐसे भी स्टार्ट हो सकता है. तो ये और भी यूजुअली हम ये कहते हैं कि दिस इज 0 डिग्री फेज और 90 डिग्री फेज है. ठीक है, but this is the starting point of the signal, कि कैसे ये start हो रहा है. फिर इस तरह time period है. Time period is the amount of time, the one cycle takes. ठीक है, एक signal जो है, जैसे अब ये एक cycle है, ये एक cycle जो है, ये कितना time ले रही है, ये हमारे पास एक cycle कितने time में complete हो रहा है, that is the time period, and the wavelength is the amount of distance. यही एक cycle जो है, ये कितना distance cover कर रही है. ठीक है, तो जितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो हमारे पास वेवलेंथ है. ठीक है, एंड वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड हाउ, व्हिच सिंबल? Lambda. लैम्डा. ठीक है, सो यू ऑलरेडी नो. चलें, when we discuss the signal, we say it's a carrier of the data. A signal is basically carrying the data from one place to another place. And do we need more signals or more data on the medium? We need more data, sir. More signals No, sir, data. or more data? Why do we need more data? And not signals?
Doesn't it mean ये मतलब नहीं है synonym नहीं है कि हम कहें कि if we have more signals, doesn't it mean we have more data? More data will speed up the process. So do we need more signals on the medium or do we need more data? One of you replied that more data. And then I ask you again, if we have more signals on the medium, doesn't it mean that we have more data as well? You can answer even if it is wrong. मतलब कोई मसला नहीं है अगर आप गलत भी आप जो भी आपके ज़हन में आता है सर सर मोर सिग्नल विल इंक्रीज जो स्पीड है उसको स्लो कर लेंगे so we need more data instead of more signal and you give the example of bus and motor आपने example So दिया this is correct. We need more data. We need more data on the medium. But then I asked, जब हमारे पास signals ज़्यादा हो जाएं, if we have more signals, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास डाटा भी ज्यादा हो जाएगा? सर डेटा ज्यादा हो जाएगा पर इन दैट केस हमें फिर और ज्यादा बैंडविड्थ की जरूरत पड़ जाएगी. अच्छा. Now we need more data on the medium and we don't need more signals onto the medium. We discussed that. And the reason is if we have more signals on the medium, we will have more congestion. Okay? And the example is the traffic jam. So if we have more traffic on the roads, so we will have a traffic jam on all the people will move slowly then. But if we have more data, it means if we have instead of having cars, we can have all buses, which will carry people from one place to another. And in this case, we will have few buses and they will be carrying more people from one place to another place. And that maybe is a very good example. Okay, we can have on the medium, we need more data. So it basically means that we need signals that can represent more data. It doesn't mean that we have more signals, it would mean more data. It is not ये ज़रूरी नहीं है. Basically, we need signals such that it can represent more data. Now, can anyone give me example of a signal that can represent more data? Is it possible or how is it possible? Again, you can answer anything as long as something is in your mind. If you have an empty mind, then it's fine. You don't answer. But if you have something in the mind, even if it is wrong, you just say it. Everyone has seen a signal like this. ऐसा आपने देखा है ना? आप कहते हैं this is 1, this is 0, this is 1, this is 0, this is 1. ऐसे सिग्नल देखा है ना आप लोगों ने? So basically, इसमें signal, one signal and one data. This is one signal and one data. So this is a signal for 1, this is representing 1 bit. This is another signal, this is representing 0, this is representing 1. Okay? So basically, what happened here is we have two different levels. Okay? We have two different levels. Signal level हमारे पास दो signal levels हैं. एक level जो है वो 1 को represent कर रहा है और दूसरा सिग्नल लेवल जो है वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये एक सिग्नल लेवल है, फिर ये फ्लक्चुएट होकर यहाँ पे आता है, फिर एक सिग्नल लेवल ये है, मतलब वही सेकंड, और वो फ्लक्चुएट हो रहा है और दो ही लेवल्स में फ्लक्चुएट हो रहा है, तो उससे हमारे पास डाटा रिप्रेजेंट हो रहा है 1 0 1 0 1 0 एंड दैट इज हाउ द डाटा इज रिप्रेजेंटेड विद टू लेवल्स ऑफ द डाटा. ठीक है? Now if we want the same, that basically here we have one signal and one bit, one data. Okay? So here what do we have? We have one signal and that is basically representing one bit. So we say one data. But how can we have more? We can say एक signal हो और वो ज़्यादा data को represent करे. So how is it possible? We actually need to have multiple levels. We need to have more than 2 levels, not just 2 levels, but 4 levels. So we can have a signal that basically is something like this initially, and then it can have another level like this, then it can have another level like this,
and then it may have another third level or fourth level like this. So we say this is, say, 20. Okay, this is 15. Another level, this is 10, and maybe this is 5. Here it may be 10. हम ये कहते हैं कि ये 10 है और ये हमारे पास 0 है. ठीक है? This is volt. Basically, a signal is what? Is the voltage of data. ठीक है? we all know that basically हम कहते हैं ये zeros one क्या है? ये different voltage levels हैं जो fluctuate होते हैं और उससे ones and zero represent होते हैं. तो अगर हमारे पास दो level of data है तो हम कहते हैं कि for example we have 10 volt and then 0 volt, and the signal is fluctuating between these two voltages, and then we have one signal equals to one data. What if we have multiple voltage levels? इसका मतलब है कि इस केस में हमारे पास फॉर एग्जांपल ये 4 लेवल्स हैं. Now one signal is this. Now if for example this represents 0, and if for example this represents 1, so what is these two levels are representing now? ये क्या चीज रिप्रेजेंट करेंगे? हमारे पास तो 0 और 1 के अलावा और कोई भी चीज नहीं है. इसका मतलब ये हो गया कि जो सिग्नल लेवल है ये एक बिट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे. मे बी दिस इज नॉट रिप्रेजेंटिंग 0, बट दिस इज रिप्रेजेंटिंग 0 0, and this is not representing just 1, maybe it is representing 0 1, and this signal is representing 1 0, and maybe this signal is representing 1 1. In this case, now we have one signal, and this one signal is representing 2 bits or 2 data, right? हम ऐसे ही कह देते हैं कि 2 data या 2 bits को represent कर रहे हैं. So now you can see the relationship. If we have few levels, if we have 2 levels, then we have only 1 bit per signal. If we have, say, 4 levels, we have 2 bits per signal. So if I want to represent 3 bits per signal, what do I need? 3 bits को मैं एक सिग्नल में कैसे represent करूंगा? 0 0 1 1 1 0. How many voltage levels? How many levels? 6. Think again. 6 level. 8 level. ठीक है? It's 8 level. So basically 2 power 3 equals to 8. So we are representing 3 bits with 8 levels. So this 8 is the level and this 3 is the bits. And 2 power 2 is equals to 4. So this is level, 4 levels, we represent 2 bits. So that is how we actually progress. So if we need 4 levels, we say 2 power 4, we represent 4 bits, we can have 16 different levels. ठीक है? Voltage levels हमारे पास 16 different होंगे. ठीक है? माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं. जो different voltage levels हैं वो हमारे पास आ सकते हैं. मतलब ये है, अगर आप voltage level को समझने, कोई 16 different options होंगी हमारे पास. If you cannot comprehend the different voltage level, although it's a very basic, but basically it means that you will have 16 different representations. तो अगर वो उन 16 different representation में वो fluctuate कर रहा है, तो it would means कि ये हमारे पास 4 different, it would represent 4 different bits at the same time. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक सिग्नल जो है वो 4 बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है या वो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है अगर हमारे पास लेवल 8 है. तो अगर हम ज्यादा बिट्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो यही हमारे पास फॉर्मूला है, यही हमारे पास एक तरीका है, और हम कहेंगे कि वी कैन नाउ वन सिग्नल कैन रिप्रेजेंट अ लॉट ऑफ डाटा. सिग्नल एक जा रहा होगा और उसमें डाटा जो है वो ज्यादा रिप्रेजेंट हो रहा होगा. ठीक है? नाउ दिस इज द प्रिंसिपल, बट डू यू थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट टू? अगर ऐसा ही है तो फिर तो हमारे पास इन्फिनिटली हाई डाटा रेट आ जाए और मसला ही ना हो, हम नंबर ऑफ लेवल्स को इंक्रीज करते जाएं और हमारे पास डाटा रेट इंक्रीज होता जाए. और आप यू आल्सो नीड टू नोट कि यहाँ पर हमारे पास बैंडविड्थ में कोई भी डिफरेंस नहीं आया. ठीक है? हमने बैंडविड्थ को इंक्रीज नहीं किया. बैंडविड्थ जो यहाँ पर था, जो 2 लेवल में था, वो जो 3 लेवल में था, जो 4 लेवल में था, वो बैंडविड्थ सेम है, बट दे आर रिप्रेजेंटिंग मोर डाटा नाउ. ठीक है? वी हैव नॉट इंक्रीज्ड द बैंडविड्थ, बट द डाटा रेट इज इंक्रीज्ड. So if that is the case, we can represent a lot of GBs of data in a very small bandwidth. Why don't we do it, or why is it not possible, or what is the problem with increasing the number of levels? What do you think?
एनीवन? अच्छा देखें, अब ये डिफरेंट लेवल्स में जो डिफरेंस करेगा ये रिसीवर करेगा, ठीक है। रिसीवर को एक सिग्नल मिल रहा होगा, वो डिफरेंस करेगा यहाँ पे 10 और 0, 10 और 0, 10 और 0 में डिफरेंस करेगा और इंटरप्रेट करेगा कि ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ठीक है। बेसिकली 1 and 0s are not carried. So now imagine there is a signal going on and the receiver is interpreting what it is receiving, ठीक है। रिसीवर इंटरप्रेट करेगा कि उसको क्या रिसीव हो रहा है। वो जब रिसीवर को वोल्टेज लेवल 10 मिलेगा तो वो कहेगा कि मुझे 1 मिल रहा है, जब उसको 0 वोल्टेज लेवल मिलेगा तो वो कहेगा कि उसको 0 मिल रहा है। तो वो फ्लक्चुएट, जैसे जैसे वो फ्लक्चुएट हो रहा है वैसे वैसे वो उसको रिप्रेजेंटेशन उसकी करता जा रहा है। फिर जब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 4 लेवल्स आ जाएंगे। अब नाउ द रिसीवर हैज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 4 डिफरेंट लेवल्स। तो अगर उसको एक सिग्नल मिल रहा है जो 15 वोल्ट का है, वो इंटरप्रेट करेगा कि उसके पास 0-1 आ गया। फिर उसके बाद दूसरा सिग्नल उसको रिसीव हुआ 5 वोल्ट का, तो वो इंटरप्रेट करेगा कि ये 1-1 है, तो ये 0-1-1-1, और ऐसे वो उस बिट्स को बनाता जाएगा और इंटरप्रेट करेगा कि बेसिकली वो बाइट्स बनाएगा, फिर डाटा बनाएगा, रिप्रेजेंट करेगा कि ये क्या बेसिकली डाटा उसने रिसीव किया है। नाउ गो टू द 8 लेवल्स। जब 8 लेवल्स हो जाएगा तो जाहिर है कि हम कहेंगे कि रिसीवर इज गोइंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 8 डिफरेंट लेवल्स, सिमिलरली 16 डिफरेंट लेवल और 32 डिफरेंट लेवल और 64 डिफरेंट लेवल्स। तो जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, मसला क्या आता जा रहा है, रिसीवर के लिए ये मसला आएगा कि वो जब सिग्नल को रिसीव करेगा तो वो उसने डिस्टिंग्विश करना होगा बिटवीन डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स, और जो कि एक मुश्किल काम हो जाएगा उसके लिए, खास तौर पे वायरलेस कम्युनिकेशन में। वायरलेस कम्युनिकेशन में इसलिए मुश्किल हो जाएगा कि यहाँ पे सिग्नल जो है वो अटेन्युएट होता है, सिग्नल क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो आप एक सिग्नल को सेंड करते हैं +10 वोल्ट के साथ, और वो जो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करता है तो वो 5 वोल्ट का बन जाता है। तो अगर हमारे पास ये सिस्टम है 2 लेवल्स का, तो फिर तो इतना मसला नहीं होगा, सिंपल सिस्टम होगा। रिसीवर को जब 5 वोल्ट का सिग्नल भी मिलेगा तो वो ये इंटरप्रेट कर लेगा कि शायद ये 10 का था और ये 5 का मिल गया उसको, तो मे बी इट इज फाइन, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ 4 लेवल्स में देखें, और ये इसने हम कहते हैं कि जी 10 लेवल का सिग्नल इसने सेंड किया था 10 वोल्ट का, और वो जब उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया तो सिग्नल कमजोर हो गया, अटेन्युएट हो गया, वो 5 वोल्ट का बन गया, तो सेंड हुआ था 1-0 और इंटरप्रेट होगा 1-1 विच इज एन एरर, ठीक है। तो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ लेवल्स तो आप इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज द रिसीवर कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑल दोज डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स। तो अगर ये 10 का सिग्नल जो है वो फॉर एग्जांपल 7 बन जाता है, तब तक तो वो ठीक है, तब वो इंटरप्रेट करेगा कि ये 1-0 है। लेकिन अगर वो 10 का सिग्नल फॉर एग्जांपल 5 बन जाता है, इसलिए कि डिस्टेंस इतना कवर होता है, तो वो हम कहेंगे कि दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन दैट केस, और ये सिस्टम जो होगा वो काम नहीं करेगा वहां पर। ये बात समझ आती है या नहीं आती है? थोड़ी बात कोई समझ आई आप लोगों को कि नहीं? Yes, sir. Basically we say receiver sensitivity, okay, this is the receiver sensitivity. Now receiver has to interpret what is being sent. उसको पता होना चाहिए कि कौन सी वोल्टेज का उसको 1-0 अगेन, उसको 1 और 0 तो नजर नहीं आएगा, उसको तो डिफरेंट वोल्टेज लेवल नजर आ रहा है। तो एक बंदे ने जो है तो +10 वोल्ट का सिग्नल भेजा एक ट्रांसमीटर ने, और वो डिस्टेंस को कवर करता जा रहा है, थोड़े डिस्टेंस के बाद वो जो है वो 8 वोल्ट का हो गया, फिर थोड़ा सा और डिस्टेंस उसने कवर किया और वो जो है वो 6 वोल्ट का हो गया, थोड़ा सा और डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि ये तो फिनोमिना है वायरलेस का ना, सिग्नल स्ट्रेंथ कम हो, आप कह रहे हैं सिग्नल कमजोर आ रहे हैं, सिग्नल ठीक नहीं आ रहे, फिर वो 5 वोल्ट का हो गया, और यहाँ पर वो रिसीवर है, ठीक है। तो ट्रांसमीटर हमारे पास यहाँ पर था, उसने +10 का सिग्नल सेंड किया, उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर या जितना भी था, बीच में हो सकता है ऑब्स्टिकल हो, उसकी वजह से ये सिग्नल कमजोर हो गया हो, और जब ये रिसीव हुआ तो ये +5 का था। तो हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास 2 लेवल सिस्टम है, सो मे बी इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज फाइन, इट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। वो कहेगा कि जी ये +10 का था और मिल गया, क्योंकि 0 एटलीस्ट इट इज नॉट 0, तो इट इज फाइन, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस दूसरे सिस्टम में आते हैं, तो हम कहते हैं कि जी +10 का सिग्नल भेजा गया था, और जब वो रिसीव हुआ तो वो 5 का मिल गया, तो इसका मतलब है वो इंटरप्रेट इसको ये करेगा, सेंड ये हुआ था 1-0 और ये इंटरप्रेट करेगा 1-1 विच विल बी एन एरर इन दैट केस, ठीक है। और वो जाहिर है कि वो फिर आपके पास आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास इसमें बहुत सारी बातें हैं ना, अगर आप इस पे सोचें, अगर आप सोचें तो हम कहते हैं कि जी अगर लॉन्ग डिस्टेंसेस हैं, सो मे बी वी कैन हैव
a system that is relatively simple. तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमारे पास ऐसे सिस्टम, सिंपल सिस्टम बेहतर होंगे, और अगर शॉर्ट डिस्टेंसेस हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये मोर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम आ सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर ट्रांसमीटर और रिसीवर हमारे पास relatively close हैं, the receiver and the transmitter are close to one another, maybe we can have a complex system, ठीक है, जिसमें एक सिग्नल जो है वो ज्यादा बिट को रिप्रेजेंट। लेकिन अगर हमारे पास रिसीवर ज्यादा दूर होता जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास वो सिस्टम फिर काम नहीं करेगा, और फिर हमारे पास कोई relatively simple system होना चाहिए। And that is why we cannot have infinitely high data rate, क्योंकि हमारे पास सिग्नल हमेशा कमजोर होता जाता है, वीक होता जाता है, ठीक है। So signal is a carrier of the data. It is the layer 1 responsibility. फिर हमने कहा कि हमारे पास मीडियम पे ज्यादा सिग्नल नहीं होने चाहिए, ज्यादा डाटा होना चाहिए। तो वो कैसे होगा? वो हमारे पास जब हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम इस्तेमाल करेंगे जहां पर वोल्टेज लेवल ज्यादा होंगे और वो रिप्रेजेंट करेगा ज्यादा बिट्स को। लेकिन हम भी उसमें भी हमारे पास मसला क्या है कि रिसीवर सेंसिटिविटी का मसला है। रिसीवर जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकेगा मुख्तलिफ वोल्टेज लेवल में, इसलिए कि सिग्नल एटेन्यूएट होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो क्या होगा? वो बेसिकली इट विल बी अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स, ठीक है। ये इनकोडिंग टेक्निक्स हमारे पास डिफरेंट होंगी, इसलिए आप देखते हैं बाज दफा आपको सिग्नल, अगर आप अपने मोबाइल पे चेक करते हैं तो कभी 4G लिखा हुआ आता है, कभी H लिखा हुआ आता है। तो बेसिकली वो डिफरेंट इनकोडिंग स्कीम टाइम टू टाइम डिपेंड करता है सिग्नल लेवल पे, और डिफरेंट सिग्नल लेवल फिर डिफरेंट, अगर लेवल सिग्नल लेवल अच्छा है तो हमारे पास जो इनकोडिंग स्कीम इस्तेमाल होती है वो अच्छी ऐसी इस्तेमाल होती है जो कि ज्यादा डेटा रेट देती है। और अगर हमारे पास इनकोडिंग, अगर हमारे पास सिग्नल का लेवल अच्छा नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि हम फिर ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे जो कि कम डाटा को, इसलिए कभी आप देखेंगे कि आपको एक जैसा डाटा रेट नहीं मिल रहा होता मोबाइल पे, कभी डाटा अच्छा होता है कभी बुरा होता है, और उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर ये भी है आपके पास, ठीक है, कि जो इनकोडिंग स्कीम इस्तेमाल कर रहा है वो डिफरेंट इस्तेमाल कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन द सिग्नल स्ट्रेंथ, ठीक है। अच्छा, सो ये चीजें हमने डिस्कस की थी, इतनी डिटेल में शायद नहीं की थी लेकिन हमने ये डिस्कस कर लिए थे। फिर हमने कहा कि एंटेनाज हैं। एंटेना इज बेसिकली दैट इंटरफेस, ठीक है, फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग द सिग्नल्स, ठीक है, ये हमने रन कर लिया। फिर हमने आइसोट्रोपिक रेडिएटर की बात की, आइसोट्रोपिक एंटेना की बात की, रेडिएशन पैटर्न की बात की। रेडिएशन पैटर्न इज सिमेट्रिक इन ऑल डायरेक्शन। बेसिकली व्हाट इट मींस इज अगर आपके पास एक एंटीना है, अगर ये हमारे पास कहते हैं कि हम कहते हैं कि ये एक एंटीना है, तो जो इसका रेडिएशन पैटर्न होगा, रेडिएशन पैटर्न इज गोइंग टू बी सिमेट्रिक इन ऑल डायरेक्शन, इट विल बी इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। सो हर एक डायरेक्शन में ये हमारे पास क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा सिग्नल की। तो दरमियान में सिग्नल है और ये इसकी एक कवरेज एरिया है और वो बिल्कुल सिमेट्रिक है, बिल्कुल इक्वल है। एंड वी से दिस इज बेसिकली दी आइसोट्रोपिक रेडिएटर और आइसोट्रोपिक एंटेना। और हमने कहा कि ये हमारे पास प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली हमारे पास अगर एक एंटेना है तो उसकी जो कवरेज एरिया होगा वो इट्स समथिंग विल बी लाइक दिस, कहीं पे ज्यादा होगा कहीं पे कम होगा, ठीक है, मुख्तलिफ होगा, वो डायरेक्शनल इन नेचर होगा। लेकिन अगर इवन अच्छा, और ये हमारे पास जो है वो डायरेक्शनल एंटेनाज नहीं है, ये हमारे पास एक तो हमारे पास डायरेक्शनल एंटेनाज हैं कि जो कि एक ही डायरेक्शन में हमारे पास डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास ओमनी डायरेक्शनल है, तो दिस इज ओमनी डायरेक्शनल एंटेना। ओमनी डायरेक्शनल एंटेना आर द एंटेनाज व्हिच आर रेडिएटिंग इन 360 डिग्रीज, ठीक है, हर डायरेक्शन में। लेकिन वो इस तरह नहीं रेडिएट करेंगे, ये सिर्फ आइसोट्रोपिक करेगा। वो भी करेगा तो इस तरह करेगा, कम और बेशी इस तरह, कहीं पे थोड़ा ज्यादा होगा कहीं पे थोड़ा कम होगा, और वो बिल्कुल सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। दैट विल बी ओमनी डायरेक्शनल एंटेना। तो आइसोट्रोपिक एंटेना हमारे पास क्या है, रेफरेंस एंटेना है, और हम प्रैक्टिकल एंटेनास को कंपेयर करते हैं आइसोट्रोपिक एंटेनास के साथ। अच्छा, फिर हमने कहा कि रियल एंटेनास जो हैं वो डायरेक्टिव हैं। डायरेक्टिव एंटेनास आर यूज्ड टू ओवरकम द एनवायरमेंटल चैलेंजेस। कोई बता सकता है कि डायरेक्टिव एंटेनास हाउ दे आर यूज्ड टू ओवरकम द एनवायरमेंटल चैलेंजेस? क्या एग्जांपल हमने दी थी? Anyone? सर जिस तरह
ये मोबाइल बूस्टर जो होते हैं वो पहाड़ के ऊपर लगाते हैं या ऐसी साइड पर लगाते हैं जहाँ पर आबादी मैक्सिमम हो और ज्यादा जी कवरेज जी लोगों को मिले सर। जी। सो मे बी फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमारे पास जो है तो वो पहाड़ है और यहाँ पे सारी आबादी है, ठीक है। यहाँ पे सारी आबादी है और यहाँ पे पहाड़ है और यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल एंटीना लगा रहे हैं, तो वो एंटीना पे सिर्फ इस डायरेक्शन में, उसको चाहिए कि वो सिर्फ इस डायरेक्शन में रेडिएट करे। देयर इज नो नीड ऑफ रेडिएटिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास डायरेक्शनल एंटीना है। तो हम कहते हैं ये ऑब्स्टिकल है। तो हम कहते हैं कि डायरेक्टिव एंटीनास आर यूज्ड टू ओवरकम द एनवायरमेंटल चैलेंजेस। दिस इज वन ऑफ द एनवायरमेंटल चैलेंज। वी डोंट नीड टू कवर दिस माउंटेन इफ देयर इज नो, अगर इस पे आबादी नहीं है तो जाहिर है कोई जरूरत भी नहीं है। तो वो इस एनवायरमेंटल चैलेंजेस को ओवरकम करता है यूजिंग द डायरेक्शनल एंटीना। सो वी रेडिएट ओनली इन दिस डायरेक्शन। सिमिलरली इफ वी हैव अ मोटरवे, तो हम कहते हैं कि मोटरवे पर हमारे पास अगर एंटीना है तो वो क्या करेगा, वो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में जो है तो वो कवरेज प्रोवाइड करेगा, अगर यहाँ पर जाहिर है कि आबादी नहीं है। तो वो हम कहते हैं कि जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वो बेसिकली इनको ओवरकम करता है। और ये इनका फायदा होगा कि गैर जरूरी तौर पे सिग्नल्स और कहीं पे नहीं जाएंगे, क्योंकि उससे हमारे पास एनर्जी जो है वो वेस्ट होगी, पावर हमारे पास वेस्ट होगी जो कि अच्छी नहीं होगी। वो पावर हम बेसिकली इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कवरेज टू अ लॉन्गर डायरेक्शन। देखें, अगर हमारे पास ओमनी डायरेक्शनल एंटीना है, ठीक है, ओमनी डायरेक्शनल एंटीना इज एन एंटीना दैट इज रेडिएटिंग इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। ये हमारे पास ओमनी डायरेक्शनल एंटीना है। अगर हमारे पास ओमनी डायरेक्शनल एंटीना है, हम कहते हैं ये कोई सर्टेन पावर है, ठीक है, वो सिग्नल को रेडिएट कर रहा है पीटी। तो और वो हम कहते हैं कि वो जब हम उससे रेडिएट करते हैं तो ये एक कवरेज एरिया, ये एक एरिया को कवर करता है, फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर को, 1 किलोमीटर एरिया कवर करता है। अगर हमारे पास ये ओमनी डायरेक्शनल एंटीना, ठीक है, रेडिएट कर रहा है विद सम पावर पीटी, या हम कहते हैं 2 वॉट है, 5 वॉट है, 10 वॉट है, 20 वॉट है, तो हम कहते हैं चलिए 20 वॉट के साथ ये सिग्नल को दे रहा है, तो फिर हम कहते हैं कि ये 1 किलोमीटर को फॉर एग्जांपल कवर कर रहा है। दूसरा हम डायरेक्शनल एंटीना लेते हैं, हम कहते हैं एक डायरेक्शनल एंटीना है, वही पावर है, ठीक है, वही पीटी है, वही 20 वॉट्स है, ठीक है, उसी 20 वॉट्स के साथ ये सिग्नल को रेडिएट कर रहा है, लेकिन ये अब क्या कर रहा है, एक डायरेक्शन में कर रहा है। तो हम कहते हैं कि ये अप टू से 5 किलोमीटर्स को एरिया को कवर कर रहा है, इसलिए कि सारी आबादी इस तरफ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एडवांटेज कि यहाँ पर अगर आपने इसको, अगर ये ओमनी डायरेक्शनल एंटीनास आपने यूज करने होते तो फिर आप मल्टीपल एंटीनास को यूज करते अगर आपने 5 किलोमीटर के एरिया को कवर करना था। लेकिन अगर आप डायरेक्शनल एंटीनास इस्तेमाल कर रहे हैं, चूंकि ये हर एक डायरेक्शन में रेडिएट नहीं कर रहे और स्पेसिफिक डायरेक्शंस में कर रहे हैं, तो उसी पावर में ये ज्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं और ये इनकी बिग एडवांटेज है, ठीक है। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग दी डायरेक्शनल एंटीनास। अच्छा, in mobile communication we say that directive antennas are used and they are called the sectorized antennas, ठीक है। ये लास्ट स्लाइड थी शायद हमने जो लास्ट वीक डिस्कस की थी कि जो मोबाइल एंटीनास हैं हमारे पास वो उनको हम सेक्टराइज्ड एंटीनास कह सकते हैं। तो किसी ने देखे हैं, अभी तक किसी ने देखा है कोई बेस स्टेशन को? अगर आप बेस स्टेशन देखें, सो हाँ, व्हाट इज अ बेस स्टेशन? बेस स्टेशन क्या चीज है? सर ये मोबाइल कम्युनिकेशन बूस्टर जो होता है ये प्रोबेबली बेस्ट बूस्टर आप इसको ना कहें, मतलब सिग्नल जो है, हाँ, एंटेना जो है, ठीक है। बूस्टर इज अ डिवाइस दैट ओनली बूस्ट द सिग्नल, ठीक है, और रिले द सिग्नल। ये एंटेनास हैं, these are the antennas on a मोबाइल। आप यूजुअली कहते हैं मोबाइल टावर। ये मोबाइल टावर जो है बेसिकली है, दिस इज द बेस स्टेशन। तो आप बेस स्टेशन पे आप देखें तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट एंटीनास लगे होते हैं और वो ऐसे स्क्वायर सा के व्हाइट कलर के होते हैं यूजुअली, और मल्टीपल एंटीनास लगे होते हैं। ये जिस डायरेक्शन में भी लगे हुए हैं उसी डायरेक्शन में वो सिग्नल प्रोवाइड करें। कुछ जरा नीचे लगे होते हैं, कुछ ऊपर लगे होते हैं, बेसिकली वो डिवाइड करते हैं उस जियोग्राफिक एरिया को। हम इन एंटीनास को क्या कहते हैं? सेक्टराइज्ड एंटीना कहते हैं। इसलिए कि ये अगर हमारे पास एक सेल है, एक बेस स्टेशन है और उसमें 3 एंटीनास लगे हुए हैं और ये उसका कवरेज एरिया है, अगर 3 एंटीनास लगे हैं तो इसका मतलब है कि उसने इस सेल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। इसका मतलब है कि इसका एक एंटीना यहाँ लगा है, एक एंटीना यहाँ लगा है, एक एंटीना इस साइड पे लगा है, और जिस डायरेक्शन में भी वो एंटीना लगा हुआ है उसी डायरेक्शन में वो कवरेज प्रोवाइड कर रहा है। सो बेसिकली दिस इज सेक्टर 1, S1 हो गया, ये सेक्टर 2 हो गया, ये सेक्टर 3 हो गया। तो ये एक सेल जो है बेसिकली हम कहते हैं इसमें 3 सेक्टर्स हैं। इट्स अ लॉजिकल डिवीजन, ठीक है।
दिस इज द लॉजिकल डिवीजन, इट्स नॉट अ फिजिकल डिवीजन, इट्स अ लॉजिकल डिवीजन। हम इसको एक ही सेल कहते हैं, लेकिन ये लॉजिकली डिवाइड होता है और हम उसको एक सेक्टर कहते हैं। इस एंटीनास को, जो हमारे पास वाइट वाइट एंटीनास हैं, इसको हम इसी वजह से सेक्टराइज्ड एंटीनास कहते हैं। ठीक है, अच्छा, two or more antennas can be combined to improve the reception called the multi-element antenna array। ये हमने डिस्कस किया था कि मल्टीपल एंटेनास हमारे पास लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं। और अगर हम मल्टीपल एंटेनास लगा रहे हैं तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो λ/2 होगा, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ। ठीक है, जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है उसका जो वेवलेंथ है डिवाइडेड बाय 2 शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द एंटीना। सो इफ वी हैव अ, ये ज्यादातर आप लोगों ने एक्सेस पॉइंट में देखे होंगे, वाईफाई के जो एक्सेस पॉइंट्स होते हैं उसमें अगर आप देखें तो यूजुअली पहले सिर्फ एक एंटेना होता था, अब जो है वो बाज दफा पे 2 एंटेनास होते हैं, 3 भी होते हैं, बल्कि ऐसे भी होते हैं जिसमें हमारे पास मे बी 6 एंटेनास आर आल्सो देयर। सो उनके दरमियान जो ये डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस शुड बी λ/2। ठीक है, एंड बेसिकली ये ज्यादा अच्छी रिसेप्शन देने के लिए, ट्रांसमिशन के लिए हम कहते हैं सिग्नल की स्ट्रेंथ ज्यादा हो, क्योंकि हो सकता है इस एंटीना से फॉर एग्जांपल जो सिग्नल जनरेट कर रहा है रिसीवर उसको सही रिसीव ना करे, तो हो सकता है कि इससे रिसीव कर सके, हो सकता है इससे रिसीव कर सके। ठीक है, सो वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग मल्टीपल सिग्नल्स, मल्टीपल एंटेनास इज दिस के एक से अगर सिग्नल नहीं मिल रहा तो दूसरे से मिल जाएगा, जिससे ओवरऑल हमारे पास जो कवरेज एरिया होगी वो बेहतर होगी और जो ट्रांसमिशन होगी वो बेहतर होगी। ठीक है, यहां तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, नाउ wired communication have direction of propagation, that is it follows the medium। अगर हम वायर्ड कम्युनिकेशन की बात करें, देखें हमने वो सिग्नल लेवल्स की बात की इससे पहले ना, कि सिग्नल लेवल जो है वो कम हो जाता है, हम इस वजह से ज्यादा वोल्टेज लेवल नहीं रख सकते। लेकिन अगर हमारे पास केबल होता, ठीक है, अगर एक सिग्नल जो है वो हमारे पास केबल में जा रहा है, so if you have a transmitter and it is connected with a receiver and this is a cable, तो जो यहाँ पे वोल्टेज लेवल है बहुत कम डिफरेंस आएगा यहाँ तक, और जो डिफरेंस आएगा वो हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि वो सिंपल इक्वेशन से होगा कि इसमें कितनी एटेन्युएशन होती है, इस मीडियम में कितना एटेन्युएशन पॉसिबल है, और जितना भी डिस्टेंस है हम उसको फॉर्मूला में अप्लाई करके करेंगे तो हमको पता होगा कि यहाँ से अगर एक सिग्नल जनरेट हुआ है 10 वोल्ट का, तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते वो कितने वोल्टेज का होगा। इट इज प्रिडिक्टेबल इन दैट केस, इसलिए कि ये वायर्ड मीडियम है। अगर ये वायर्ड है तो वायरलेस में बेसिकली हम, और जहां जहां पे ये मीडियम जाएगा सिग्नल जो है वो उसी को फॉलो करेगा। ठीक है, सो वायर्ड कम्युनिकेशन हैव डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन दैट इट फॉलोज द मीडियम, बट दैट इज अनलाइक इन वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन में क्या है, कोई यूनिफॉर्म मीडियम नहीं है, इसलिए हमारे पास वो सिग्नल, जो भी एक सिग्नल हो गया, एक ट्रांसमीटर अगर सिग्नल को ट्रांसमिट करता है तो वो हमारे पास मल्टीपल डायरेक्शंस में जा सकता है। ठीक है, और इसी वजह से वो हम कहते हैं कि वो प्रेडिक्ट, और जो रिसीवर रिसीव करेगा वो भी जरूरी नहीं है कि वो एक ही सिग्नल हो जाए। एक तो ये हमारे पास ये सिग्नल है जो ये रिसीव करेगा, लेकिन हो सकता है कि एक और सिग्नल हो जो कि हमारे पास रिफ्लेक्टेड सिग्नल हो। ठीक है, तो वो मल्टीपल कॉपीज सिग्नल के रिसीव करेगा, सिर्फ एक सिग्नल रिसीव नहीं करेगा बल्कि मल्टीपल सिग्नल रिसीव करेगा। ठीक है, और हर एक सिग्नल का फेज डिफरेंट हो सकता है, हर एक सिग्नल का जो है वो सिग्नल स्ट्रेंथ डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट चीजें हो सकती है, वो उनको कंबाइन करके फिर कुछ मीनिंग उससे लेगा। ठीक है, दैट इज व्हाई वायरलेस कम्युनिकेशन इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। The situation can be either the transmission range, the detection range or the interference range। कोई ऐसा रेंज जिसमें हमारे पास ट्रांसमिशन होती है, ऐसे ही जिसमें सिर्फ डिटेक्शन हो सकती है, ट्रांसमिशन बहुत कम होगी, डिटेक्शन ज्यादा होगी, और या इंटरफेरेंस रेंज होगी। ठीक है, व्हाट आर दे, हम कहते हैं कि सिग्नल प्रोपिगेट्स इन वायर्ड मीडियम, द मीडियम एग्जिबिट्स सेम कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि वायर्ड मीडियम में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सेम होती हैं, वायरलेस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, इस वजह से हमारे पास ये 3 डिफरेंट रेंजेस हैं। ट्रांसमिशन रेंज में क्या है, रेंज इन विच द रिसीवर रिसीव्स द सिग्नल विद लो एंड एक्सेप्टेबल एरर रेट। हम कहते हैं कि ये सेंडर जो है, ये जो पहला हमारे पास सर्कल बना है ये ट्रांसमिशन रेंज है। इस रेंज में हमारे पास क्या होगा कि जो सिग्नल लेंथ होगी, जो लेवल होगी वो अच्छी होगी, जो सिग्नल स्ट्रेंथ होगी वो अच्छी होगी, और उसमें जो एरर आएंगे वो कम होंगे। ठीक है, या एक्सेप्टेबल होंगे। एरर हमेशा होते हैं लेकिन वो एक्सेप्टेबल, जब तक वो एक्सेप्टेबल रेंज में है तब तक वो ठीक है। इसके आउटर अगर हम देखें, आउटर एक दूसरा सर्कल है, हम कहते हैं कि दैट इज द डिटेक्शन रेंज।
receiver can detect the signal as its power is high enough to make it distinguishable from the background noise. So हम कहते हैं कि सिग्नल जो है वो डिटेक्ट तो होगा, ट्रांसमिशन बहुत मुश्किल से होगी, बहुत कम होगी। इसका मतलब ये भी है कि जो डेटा रेट यहाँ पर होगा वो डेटा रेट शायद यहाँ पर ना हो। इसका मतलब है कि, और इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पे जो एरर्स हैं वो जैसे हमने कहा कि कम है या एक्सेप्टेबल है, डिटेक्शन में हमारे पास एरर रेट ज्यादा हो जाएगा। इवन ट्रांसमिशन अगर हो भी रही है तो ज्यादातर एरर्स में रिजल्ट हो रही है, विच इज अगेन नॉट काउंटेड। ठीक है। एंड द थर्ड रेंज इज interference range. Receiver cannot detect the signal, but it can disturb other signals and contribute to the background noise to the other transmission. तो हम कहते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस इतना ज्यादा हो गया है कि बेसिकली एक्चुअल ट्रांसमिशन नहीं हो रही है, बल्कि वो सिग्नल आपस में सिर्फ इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो यहाँ का एक सिग्नल है, वो दूसरे के सिग्नल के साथ इंटरफेयर कर रहा है। So ये हम कहते हैं, तो again as we see the distance, as the distance is increasing, we say we have a different mode, we have a different range. ठीक है। एक में हमारे पास हम कहते हैं यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रांसमिशन हो सकती है, एरर बहुत कम होंगे। जैसे जैसे हम इससे दूर हो जाते जाएंगे हमारे पास एरर ज्यादा होता जाएगा, until we have an interference range in which we only have the interference. मतलब अगर सिग्नल यहाँ पे जनरेट हो रहा है, यहाँ पे जब सिग्नल पहुंचेगा, इस रेंज में जब सिग्नल पहुंचेगा इंटरफेरेंस रेंज में, और यहाँ पे कोई और ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, तो बेसिकली वो उसके सिग्नल के साथ इंटरफेयर करेगा। वो रिसीव नहीं कर सकेगा कि ये है क्या चीज, लेकिन वो एक डिस्ट्रक्टिव सिग्नल बन जाएगा, और दूसरे जो रिसीवर्स हैं उनको जो है वो इंटरफेरेंस देगा। Path loss of the radio signal follows the straight path and gets attenuated. We already know that. ठीक है। एक सिग्नल जब हम एक ट्रांसमीटर जब सिग्नल ट्रांसमिट करता है, हम कहते हैं कि वो एक स्ट्रेट पाथ में जाता है, और साथ साथ वो एटेनुएट होता है। एटेनुएशन का मतलब क्या है, वो सिग्नल जो है वो वीक होता है, वो अपनी एनर्जी, अपनी पावर जो है उसको लूज करता है। और जैसे हमने देखा कि 10 वोल्ट का सिग्नल जो है हम कहते हैं कि 5 वोल्ट का बन जाता है। एटेनुएट मींस लॉस ऑफ एनर्जी। हम इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, डीबीज में कर सकते हैं। दैट इज दिस फार्मूला। P2 इज दी, हम कहते हैं कि जब सिग्नल की जो पावर थी वो एक पॉइंट पे और दूसरे पॉइंट पे अगर हम देते हैं कितना एटेनुएट हुआ है सिग्नल, सो वी कैन कैलकुलेट इट। ठीक है। हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक मीडियम है, या इट्स अ प्लेस इन अ नेटवर्क फॉर एग्जांपल। ठीक है। दिस इज द सिग्नल लेवल, वहां पे P1 था, यहाँ पे P2 है। हम कहते हैं कि यहाँ पे जो सिग्नल लेवल, जैसे हम कहते हैं ना कि वो 5 वोल्ट का बन गया और यहाँ पे वो 10 वोल्ट का था, तो हम कहते हैं कि जो भी P2, जो भी इसका लेवल है वो ये है, और एक P1 है हमारे पास, इनिशियली P1 था। If you find out this, if you put these values, those watts, for example, in the here, तो हमारे पास एक dBs में एक वैल्यू आ जाएगी, और उससे हमें पता चलेगा कि सिग्नल लेवल जो है वो एटेनुएट हुआ है या वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है। dBs बेसिकली हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं फॉर द सिग्नल रिप्रेजेंटेशन। इनवर्स स्क्वायर लॉ हमारे पास बेसिकली फॉलो होता है, वो जो बताता है कि जो ट्रांसमिट पावर है, ठीक है, दिस PR इज द ट्रांसमिट पावर, दिस PR इज द ट्रांसमिट पावर। तो एक सिग्नल जब एक एंटीना है, वहां से सिग्नल जा रहा है, हम कहते हैं किसी पावर के साथ जाएगा। ठीक है। तो वो हमारे पास किसी पावर के साथ जाएगा। हम इसको TR से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, PR से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रांसमिट पावर, which is directly proportional to 1 by d square. So as the distance increases, the transmit power is basically decreases. So power of the signal is decreasing as the square of the distance. So it's a simple formula कि even कोई obstacle नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ distance के साथ जो है वो signal जो है वो attenuate होता जाएगा। तो obstructions या buildings आ गई हैं, trees आ गई हैं, वो तो अलग phenomena है, उससे तो signal और भी ज्यादा अटेनुएट होगा, वीक होगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो सिर्फ डिस्टेंस जो है वो भी कंट्रीब्यूट करेगा उस सिग्नल की स्ट्रेंथ को कम करने के लिए, उस सिग्नल को अटेनुएट करने में। हम इसको कहते हैं कि बेसिकली ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, which states that the power of the signal is directly proportional to 1 by distance square. Atmosphere can degrade the signal strength. Radio wave exhibit 3 fundamental behavior. ये 3 behavior की डिस्क्रिप्शन तो नेक्स्ट लेक्चर में आएगी या लेक्चर 2 में आएगी। आई डोंट नो इफ वी विल कवर दैट और नॉट, बट हमारे पास जो सिग्नल है रेडियो वेव के, वो या ग्राउंड वेव होंगे, या वो स्काई वेव होंगे, या वो लाइन ऑफ साइट होंगे। तो अगर एक सिग्नल जो है वो 3 मेगाहर्ट्ज से कम है तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो ग्राउंड वेव है। अगर 3 to 30 मेगाहर्ट्ज के दरमियान है तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो स्काई वेव है, और अदरवाइज इट इज अ लाइन ऑफ साइट। बेसिकली
we deal with the line of sight only. जो हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं, तो हम सिर्फ लाइन ऑफ साइट की बात करते हैं. किसी ने ये टर्म सुना है लाइन ऑफ साइट का, LOS का? यस सर. What does it mean? लाइन ऑफ साइट का क्या मतलब है? सॉरी सर, सिर्फ लफ्ज सुना है. Area of projection, sir. Area of projection mean to say if we are facing to the front, then the line of sight of my will be right in front of me. The Yes. area which I can visually see is my line of sight. This is I your line cannot of see sight. it, but If we I have a cannot see it. But yes, sir. Then in communication, if a tower is 30 feet high, then the line of sight will be accordingly in that side. ठीक है, सही है, ठीक है. दैट विल बी अ रेडियो लाइन ऑफ साइट. ठीक है, तो हम कहते हैं एक ट्रांसमीटर है, एक हमारे पास रिसीवर है. ठीक है, दोनों एंटेनाज हैं. ट्रांसमीटर जो है वो सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है, रिसीवर जो है रिसीव कर रहा है. दे शुड बी लाइन ऑफ साइट. दे शुड सी वन अनदर. इफ दे कैन सी एंड देयर इज नो ऑब्स्टिकल बिटवीन देम, दैट इज द केस. ठीक है, इसमें ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए. अगर ऑब्स्टिकल आ गया है तो फिर जाहिर है कि वो लाइन ऑफ साइट नहीं है. ठीक है, लेकिन अगर there is no obstacle here and they can see one another, we say that such communication is line of sight. और ये basically possible है जब हमारे पास सिग्नल लेवल ज्यादा होता जाता है. तो सिग्नल फ्रीक्वेंसी जब हमारे पास ज्यादा होती जाती है, तो सिग्नल फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 30 मेगाहर्ट्ज से जब ज्यादा हो जाए, तो ऐसे जो सिग्नल्स होंगे जिनकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा होगी, उनकी प्रॉपर्टी ये होगी कि वो लाइन ऑफ साइट होंगे. It means they will go in a straight line. They're kind of a straight line. And then if there is no obstacle, they will actually go directly to the receiver in that case. अगर वो line of sight communication है. अगर वो ground wave होते तो हम कहते हैं कि वो basically उनकी property ये है कि वो ground curvature को follow करते हैं. So they don't need to be line of sight. तो यहाँ पर हमारे पास एक transmitter है और ये हमारे पास अर्थ कर्वेचर है. ठीक है, ये जमीन है और ये बहुत दूर, हम कहते हैं किसी और कॉन्टिनेंट में हमारे पास एक रिसीवर है. लेकिन इस सिग्नल में ये प्रॉपर्टी है कि ये अर्थ कर्वेचर को फॉलो करती है और ये जाती है. ठीक है, और ये इट विल गो अंटिल इट गोज टू द रिसीवर. और जो रेडियो चैनल्स होते हैं, जो AM रेडियोज होते हैं, अगर आप कभी रात को रेडियो चैनल्स ऑन करें तो आपको मुख्तलिफ किस्म के रेडियो चैनल्स सुनाई देंगे. ठीक है, किसी और मुल्क के भी आपको सुनाई देंगे. वजह क्या होती है कि वो जो उनकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो ये होती है, जो रेडियो चैनल्स होते हैं. सिमिलरली वी कैन हैव अ स्काई वेव. अगेन इसकी डिस्क्रिप्शन अगले लेक्चर में आएगी. लेकिन स्काई वेव का ये है कि वो दे मूव अप. ठीक है, एंड देन वी हैव another layer in the atmosphere. ठीक है, ionosphere जिसे हम कहते हैं. उस लेयर से जब ये टकराते हैं तो ये they move down and then ये इस तरह रिफ्लेक्ट करते जाते हैं, मूव करते हैं. बिकॉज ionosphere जो ऊपर एक चार्ज पार्टिकल है एटमॉस्फेयर के एंड में, तो सिग्नल उसे जब टकराता है तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, फिर यहाँ से जमीन से टकराता है, फिर रिफ्लेक्ट हो जाता है. तो ऐसे ये मूव करता जाता है और लॉन्ग डिस्टेंस को जो है वो कवर करता है. ठीक है, सो इन दीज टू केसेस हमारे पास इनकी जो प्रॉपर्टी है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो लाइन ऑफ साइट नहीं है. द सिग्नल कैन ट्रेवल एंड देन व्हेन द सिग्नल ट्रेवल इट कैन गो आइदर फॉलो द अर्थ कर्वेचर और इट कैन गो स्ट्रेट अप, स्ट्राइक द आयोनोस्फीयर, कम बैक एंड दैट गोज ऑन एंड ऑन. और बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस जो है वो उसमें वो कवर कर सकते हैं. रेडियो चैनल्स जो होते हैं ज्यादातर हमारे पास ये होते हैं. और लेकिन हमारा जो हम डेटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं वो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो ये होती है. ठीक है, नाउ लुक, यहां पर हमारे पास क्या है, वेवलेंथ. अगर हम देखें कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी तो ये है, लेकिन हाउ दे आर डिफरेंट इन वेवलेंथ्स. कैन यू सी कि वेवलेंथ्स के डिफरेंसेस में कैसे आ रहा है. कौन से सिग्नल्स जो हैं, कौन सी जो टाइप है उसमें वेवलेंथ ज्यादा है और कौन से टाइप में वेवलेंथ कम है. ग्राउंड वेव की वेवलेंथ ज्यादा है या लाइन ऑफ साइट की वेवलेंथ ज्यादा है. ग्राउंड वेव की वेवलेंथ जो है वो ज्यादा है फ्रॉम द लाइन ऑफ साइट एंड स्काई वेव. जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती जाए, यहाँ देखें ना, यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज है, फिर ज्यादा हो गई, 30 मेगाहर्ट्ज तक चली गई, फिर उससे भी ज्यादा होगी. तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती जाती है, वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ कम होनी शुरू हो जाती है. तो हम ये कहते हैं कि जब वेवलेंथ कम होगी, इसका मतलब ये क्या है, एक जनरल प्रिंसिपल हमारे पास ध्यान में क्या आएगा कि अगर वेवलेंथ कम होती जाएगी तो इसका मतलब ये है कि वैसे वो सिग्नल जो है दे विल बी मोर लाइन ऑफ साइट. इट आल्सो मींस इवन इन 30 मेगाहर्ट्ज,
30 मेगाहर्ट्ज से हम 1 गीगाहर्ट्ज में चले गए, 1 गीगाहर्ट्ज से हम 2 गीगाहर्ट्ज में, 3, 5, 10, 20, 60 गीगाहर्ट्ज, इस तरह हम जाते जा रहे हैं। ठीक है, ये एक स्पेक्ट्रम में हम जा रहे हैं ना। तो अभी हमारे पास हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट जो है वो 30 मेगाहर्ट्ज है। ठीक है, और हम इसी स्पेक्ट्रम पे आगे मूव करते हैं, हम कहते हैं 30 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी से 1 गीगाहर्ट्ज, फिर 2 गीगाहर्ट्ज, फिर हमने वो 2.4 गीगाहर्ट्ज भी देखा ना। इसी तरह हम मूव करते जा रहे हैं, फिर हम कहते हैं जी 10 गीगाहर्ट्ज। तो ये हम लाइन ऑफ साइट ही में है, लेकिन हम इसको इंक्रीज करते जा रहे हैं और फिर हम आ जाते हैं से 60 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इस पे मूव करते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो जो डायरेक्शन, वो जो लाइन ऑफ साइट की प्रॉपर्टी है वो ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो कम होती जाएगी, यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा है, और जैसे जैसे हम यहाँ पे मूव करते जा रहे हैं वेवलेंथ जो है वो कम होती जा रही है। तो हमारे पास एक जनरल प्रिंसिपल क्या हो गया कि जैसे जैसे वेवलेंथ कम होती जा रही है, इसका मतलब है कि वो मोर लाइन ऑफ साइट होता जा रहा है। इसका मतलब है कि वो ज्यादा ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम नहीं कर सकता। ग्राउंड वेव और स्काई वेव जो है वो ज्यादा ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकता है, लेकिन लाइन ऑफ साइट जो है वो ज्यादा ऑब्स्टिकल को कवर नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा, कैन डू एनीवन हैव एग्जांपल जिसने हर एक ने यूज किया है वो फ्रीक्वेंसी, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, और उसमें थोड़ा सा भी ऑब्स्टिकल आपको आपके पास आता है तो वो कम्युनिकेशन नहीं करेगा? Can someone give me a home example? A device they have used which is Infrared, operating at sir. a very high frequency. जी? Infrared, sir. Infrared, ठीक है? Now we are talking about this is 60 gigahertz and then we go terahertz. ठीक है? जब हम terahertz में जाते हैं तो इसका मतलब है हम infrared में आ गए। ठीक है? तो इंफ्रारेड के डिवाइसेस आपने यूज किए होंगे जो टीवी रिमोट इस्तेमाल करते हैं। तो टीवी रिमोट के सामने अगर आप हाथ रख देते हैं तो वो आपके पास काम नहीं करेगा, इसलिए कि वो इट इज वेरी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो मिनिमम आ गई है। ठीक है, वेवलेंथ बहुत कम आ गई है, तो जहां पे आप हाथ भी रखेंगे तो कम्युनिकेशन नहीं करेगा। लेकिन अगर हम मोबाइल नेटवर्क में आ जाते हैं जो कि अबाउट 2 गीगाहर्ट्ज और समथिंग मोबाइल नेटवर्क यहाँ पर है, तो अगर हमारा मोबाइल फोन जेब में भी है, हाथ में है या जो भी है, तो वो काम करता है इसलिए कि वो लाइन ऑफ साइट तो है, लेकिन वैसा लाइन ऑफ साइट नहीं है जैसे कि इंफ्रारेड। ठीक है, सो जहन में ये प्रिंसिपल अपना जहन में रख लें एक, कि भाई वेवलेंथ जैसे जैसे कम होती जाती है, द कम्युनिकेशन इज बिकमिंग मोर लाइन ऑफ साइट, और जैसे जैसे वेवलेंथ जो है वो कम होती जा रही है वो हमारे पास लाइन ऑफ साइट के लिहाज से भी कम होती है। उसकी वजह देखें, अगर हमारे पास एक ऑब्स्टिकल, एक वेवलेंथ है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, एंड इफ दे आर सो बिग, ठीक है, if they are so big, maybe there are an obstacle, a small hill, or maybe the mountain, or the what do you say, the trees, buildings, they will not affect it, इसलिए कि वो wavelength उसका इतना बड़ा है कि they will bypass it. ठीक है, now if we have a wavelength, यहाँ से एक सिग्नल आ रहा है और उसका जो wavelength है वो बहुत कम है, तो when it strikes this obstacle, जाहिर है कि वो उसको फिर कवर नहीं कर सकेगा, उसको जो है उसे उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकेगा, इसलिए कि उसका wavelength ही बहुत कम है। ठीक है, तो जहन में ये चीजें एक इमेजिन करें, रखें कि जैसे जैसे वेवलेंथ हमारे पास इंक्रीज होती है तो वो ऑब्स्टिकल्स को कवर को ओवरकम कर सकती है, जैसे जैसे हमारे पास ये कम होती है तो वो ऑब्स्टिकल्स को नहीं कर सकती है। ठीक है, इवन ऑन द लाइन ऑफ साइट में भी हमारे पास ये फिर डिफरेंट उसकी सिवियरिटी है, डिफरेंट लेवल ऑफ सिवियरिटी है डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा एडिशनल सिग्नल प्रोपिगेशन इफेक्ट्स, वी हैव अ ब्लॉकिंग और शैडोइंग। इस इफेक्ट जैसे हमने यही बात की ना कि एक सिग्नल है और वो ऑब्स्टिकल से ब्लॉक हो जाता है, उससे वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता, तो हम कहते हैं we can call it blocking or shadowing. It's the effect that the receiver signal power fluctuates due to the object obstructing the propagation path between the transmitter and the receiver. तो ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान कोई ऐसा ऑब्स्टिकल आ गया है, बिल्डिंग है या माउंटेन है, जिससे वो सिग्नल जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है। इट काज्ड बाय द ब्लॉकिंग ऑफ द सिग्नल, मे बी अ स्मॉल वॉल और अ ट्री या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, हम उसको ब्लॉकिंग या शैडोइंग कहेंगे। तो जो सिग्नल एटेन्युएशन है, दैट इज काज्ड बाय द ऑब्स्टिकल्स, वी कॉल इट ब्लॉकिंग और शैडोइंग। रिफ्लेक्शन है हमारे पास दूसरा फिनोमेना, दूसरा एक एडिशनल सिग्नल प्रोपिगेशन इफेक्ट है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल, for example the huge building or the mountain, we call this phenomena as reflection. The signal will travel and it will hit that obstacle and reflect back. ठीक है,
it is not just a disadvantage, it can be an advantage as well, because it provides the non-line of sight communication. So how is it a non-line of sight communication? चला गया हूँ, चले। हम कहते हैं कि हमारे पास जो रिफ्लेक्शन है बेसिकली इट प्रोवाइड्स द नॉन लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की कि जी हमारे पास जो मोबाइल नेटवर्क्स हैं या जो भी हैं ये लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। लेकिन अगर आप घर में बैठे हुए हैं तो घर में भी बैठ के आप जो है आपका जो मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो कनेक्ट है आपके पास बेस स्टेशन के साथ विच इज आउटडोर, तो वो सिग्नल आप तक कैसे पहुंच रहा है, वो कैसे पेनिट्रेट कर रहा है। हालांकि वो 2 गीगाहर्ट्ज और समथिंग अबाउट 2 गीगाहर्ट्ज का सिग्नल है, ठीक है, 1800 का होगा या 2.1 का होगा, तो उसका फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, बट इन द होम यू कैन स्टिल रिसीव इट। हाउ? कैसे रिसीव कर रहे हैं? नो वन, किसी के पास भी आंसर नहीं है। बेसिकली अगर मैं रिफ्लेक्शन से पूछ रहा हूं तो हम the same phenomena is used, ठीक है, it helps the non-line of sight communication. So how can we are getting the signal, because we are not getting it line of sight but we are getting it non-line of sight. So maybe जो हमारे पास यहाँ पे खिड़की है और दरवाजे हैं, कुछ और है, सिग्नल कैन कम, ठीक है, as the air can come the signal can come, तो हम कहते हैं कि नॉन लाइन ऑफ साइट है, हमारे पास जो है कोई ऑब्स्टिकल है उससे वो टकरा रहा है, वो सिग्नल जो है वो टकराते टकराते मुख्तलिफ ऑब्स्टिकल से पास होते होते वो आप तक पहुंच जाता है। इट इज सेम एज द सनलाइट। देखिए सनलाइट जो होती है ये क्या होती है, आप कमरे के अंदर मौजूद होते हैं और खिड़की दरवाजे अगर हैं तो सनलाइट आप पे पड़ तो नहीं रही है लेकिन फिर भी कमरा रोशन है। तो कमरा रोशन क्यों है? इसलिए कि वो सनलाइट जो है वो मुख्तलिफ, एक तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनसे टकरा रही होती है, उनसे रिफ्लेक्ट हो रही होती है, और वो आप तक, और या वो जमीन से टकरा रही है, दीवारों से या किसी और चीजों से टकरा रही है जो बाहर टकरा रही है, और उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो आप तक पहुंच रही है टू सम एक्सटेंट। मोस्टली द डस्ट पार्टिकल्स जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो आपका कमरा इवन आप डायरेक्ट सनलाइट में नहीं है लेकिन कमरा रोशन है। वजह क्या है कि आपके पास रिफ्लेक्शन आ रही है उसकी। तो वही फिनोमिना जो है हमारे पास सिग्नल्स में भी इस्तेमाल हो रहा है। तो वी आर नॉट ट्रूली लाइन ऑफ साइट, वी आर सिटिंग इन आवर होम, बट द रिफ्लेक्शन ऑफ द सिग्नल्स फ्रॉम, जैसे मैंने कहा कि ये एक ही सिग्नल आपके पास नहीं आएगा, मल्टीपल सिग्नल्स आपके पास आएंगे, कुछ रिफ्लेक्टेड होंगे कुछ रिफ्रैक्टेड होंगे, और वो हमारे पास हेल्प करेंगे फॉर द नॉन लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। So even if we are at home, we can still receive the signal through those reflections. ठीक है? So ये हमारे पास डिफरेंट वो जो फिनोमिना है वो ये है। रिफ्लेक्शन है तो हमारे पास एक एंटेना है, उसने जो है तो सिग्नल सेंड किया है, कोई दीवार है उसे टकराया है और सिग्नल हमारे पास रिफ्लेक्टेड सिग्नल रिसीव हुआ है टू द रिसीवर। Similarly, we can receive the line of sight signal as well, and both these signals will be combined, ठीक है, इन ऑर्डर टू चेक। जरूरी नहीं है कि हमारे पास लाइन ऑफ साइट का सिग्नल ही हो, ठीक है, कुछ और फिनोमिना है हम देखेंगे आगे। हमारे पास रिफ्रैक्शन का एक फिनोमिना भी है। वेव्स दैट ट्रैवल इनटू अ डेंसर मीडियम आर बेंट टुवर्ड्स द मीडियम। वन रीजन वेव बेंट टुवर्ड्स द अर्थ एटमॉस्फेयर क्लोजर टू द अर्थ इज डेंसर। तो अगर आपको याद हो हमने कहा कि जो ग्राउंड वेव्स हैं हमारे पास, ग्राउंड वेव्स आर आल्सो यूजिंग दिस फिनोमिना टू सम एक्सटेंट, ठीक है, कि हमारे पास वो अर्थ कर्वेचर को फॉलो करते हैं इस वजह से कि जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है क्लोजर टू द अर्थ इज डेंसर। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो इफ दिस इज द अर्थ वी से दिस इज वन लेयर, हम कहते हैं कि ये डेंसर है, ऊपर वो लाइटर है। जब सिग्नल जाता है यहाँ से टकराता है तो वो रिफ्लेक्ट होने की बजाय रिफ्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, वापस इसी मीडियम में आ जाता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज फॉलोइंग द अर्थ कर्वेचर। इन दैट केस इट इज जस्ट बेंड अ लिटिल। ये प्रिंसिपल हम फिजिक्स में इस्तेमाल करते थे जब हम स्कूल में थे। वो क्रिटिकल एंगल से जब हमारे पास एंगल ज्यादा हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो रिफ्रैक्ट हो जाता है, कुछ इस तरह का फिनोमेना था। तो ये भी वही चीज है कि हम कहते हैं कि यही रेडियो वेव जो है
ये भी हमारे पास रिफ्लेक्ट होने के साथ साथ रिफ्रैक्ट भी हमारे पास हो सकते हैं. और one of the phenomena is when they are changing, when they are going from one medium to another medium, from the denser medium to the lighter medium, and then this refraction may occur. ठीक है. Similarly, we have a scattering. Scattering is what happened when a wave impinges, it strikes an object that is rough or has irregularities with dimensions on the order of the wavelength. तो एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जो कि इरेगुलर है, जब उससे सिग्नल टकराता है तो वो मल्टीपल्स, जैसे वो कहते हैं रिफ्लेक्ट हो, तो वो एक ही सिग्नल होगा और एक ही में रिफ्लेक्ट हो जाएगा. स्कैटरिंग में क्या हो जाएगा, वो मल्टीपल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा. लेकिन वो इरेगुलरिटीज जो उस सरफेस में है, इट शुड बी इन द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ. जो सिग्नल का वेवलेंथ है अगर उसके ऑर्डर में है, तो जब वो उस सिग्नल से टकराएगा, उस सरफेस से टकराएगा, तो वो हम कहते हैं कि मल्टीपल होगा. सो दिस इज फॉर एग्जांपल अ सरफेस. हम कहते हैं कि ये, और एक सिग्नल जो है वो ट्रेवल कर रहा है एंड इट स्ट्राइक्स थ्रू दिस ऑब्स्टिकल एंड इट एक्चुअली देन स्कैटर्ड इन मल्टीपल सिग्नल्स. ठीक है. हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था, उसकी जो irregularities थी, it was in the order of the wavelength of that frequency, and that is why it was not reflected, but it was scattered into multiple directions or multiple signals. ठीक है. If the size of an object is the order of the wavelength, in order to have that scattering, we say कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, it should be in the order of the wavelength. जो wavelength है उसी के ऑर्डर में होगा. वो वेवलेंथ या वो इरेगुलरिटीज, तभी हमारे पास स्कैटरिंग जो है पॉसिबल होगी. अगर वो ऑब्जेक्ट इज टू बिग, तो हम कहते हैं कि वो फिर रिफ्लेक्शन होगी, वो स्कैटरिंग नहीं होगी. ठीक है. जीएसएम एएमपीएस का जो सिग्नल है, अगर वो 10 सेंटीमीटर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं फॉर एग्जांपल, हम कह सकते हैं कि वो एग्जिबिट कर सकते हैं स्कैटरिंग को, इसलिए कि ये उनका वेवलेंथ ऑलमोस्ट इतना बनता है. Diffraction एक phenomena हो रहा है. Diffraction is the bending of the waves around the sharp corners. Important example of diffraction include waves bending over the top of the buildings, around the street corners and through the doorways. Radio wave will be diffracted at an edge and propagates in a different direction. So हम कहते हैं कि जैसे एक बड़ी बिल्डिंग है, उससे सिग्नल जो है ऊपर से आ रहा है और उसकी टॉप ऑफ द बिल्डिंग से टकराने के बाद वो बेंड हो जाता है, तो हम कहेंगे कि वो डिफ्रैक्शन होगी. ठीक है. उसमें कोई मीडियम और नहीं आ रहे, जैसे हमने रिफ्रैक्शन में देखा कि डिफरेंट मीडियम्स थे, डेंसर और लाइटर मीडियम, कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं थे. लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे वो सिग्नल बेंड हो रहा है ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ द शार्प कॉर्नर्स. ठीक है. जैसे कि बिल्डिंग के रूफ टॉप्स होते हैं, तो रूफ टॉप से अगर सिग्नल आ रहा है तो वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है और दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है. अगर वो फिनोमेना है तो वो डिफ्रैक्शन का फिनोमेना है. ठीक है. सो दीज आर द सम ऑफ द फिनोमेनास, some of the signal propagation phenomena. Apart from that, we have a multipath propagation in which we can have more than one reflected or diffracted signal at the receiver arriving at different times. Why will it arrive at different times? Now, we already discussed. हम कहते हैं कि एक ट्रांसमीटर है, ठीक है, और वो एक सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है, और एक हमारे पास रिसीवर है और वो सिग्नल को रिसीव कर रहा है. तो वो हमारे पास मल्टीपल सिग्नल्स को रिसीव कर सकता है. ठीक है. एक लाइन ऑफ साइट हो सकता है, एक हमारे पास नॉन लाइन ऑफ साइट भी हो सकता है. ठीक है. तो हम कहते हैं ये मल्टीपाथ प्रोपेगेशन है. दिस इज गेटिंग मल्टीपल सिग्नल्स. बट वी एडिशनली हियर वी से मोर देन वन रिफ्लेक्टेड और डिफ्रैक्टेड. रिफ्लेक्टेड, हमने रिफ्लेक्टेड की एग्जांपल देखी है, यहाँ पर हम रिफ्लेक्टेड यूज कर रहे हैं. डिफ्रैक्टेड भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, स्कैटर्ड भी हो सकता है. At the receiver arriving at different times. So why will it arrive at the different times? कोई है जवाब देने वाला कि नहीं? आप सब सो गए? Why will it arrive at different times? You have a strength of 27, mashallah. Someone? Due to the obstacles? It is not due to the obstacles. Maybe Muhammad Sadiqullah, if he's listening, maybe he can answer me. I didn't know he is here as well.
Sir, because different packets follow different paths. Yes, because of the different coverage of a different distances, right? हम ये कहते हैं कि वो different signals तो आ रहे हैं, अब वो फिगर तो चली गई है, चलें, लेकिन जब वो रिफ्लेक्टेड सिग्नल है या वो लाइन ऑफ साइट है और वो नॉन लाइन ऑफ साइट है, ठीक है ना, हम ट्रांसमीटर है, उसने ट्रांसमिट एक सिग्नल भेजा और वो रिफ्लेक्ट होके आ गया, और एक हमारे पास लाइन ऑफ साइट है, तो जाहिर है रिसीवर के लिए जब उसने उसको रिसीव किया तो जो डिस्टेंस इस सिग्नल ने कवर किया है, ठीक है, नॉन लाइन ऑफ साइट, वो नॉन लाइन ऑफ साइट जो है इट इज कवरिंग मोर डिस्टेंस देन द लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट हमारे पास जाहिर है कि जल्दी आ जाएगा, नॉन लाइन ऑफ साइट जो है वो थोड़ा टाइम गुजारेगा, उसके बाद आएगा। सो बट अगेन those signals will be taken in consideration when interpreting what is the signal. It is basically it means the receiver will wait for some time, so until it receives multiple copies of the signals and then it can be interpreted कि उसने क्या receive किया है और उसको वो use करेगा, ठीक है। But multipath propagation has that advantage. Even if it is line of sight, maybe हम कह सकते हैं जरूरी नहीं कि हमें हमेशा line of sight का सिग्नल ही बेहतर हो, ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ और ऐसे फिनोमिना इस्तेमाल हों कि जिससे सिग्नल लेंथ स्ट्रेंथ जो है वो कम हो, जो नॉन लाइन ऑफ साइट का सिग्नल है वो अच्छा रिसीव हो जाए और उसमें जो है नॉइज और इंटरफेरेंस कम। Okay, that different जो different times पे हमारे पास ये arrive हो रहे हैं, we call it a delay spread. This effect has nothing to do with the possible movement of the sender or the receiver. So right now what we are considering is the transmitter and the receiver, they are stationary, they are not moving, okay, but they are transmitting the signal, and the signal that are received at the receiver, basically they are received in a different time period, okay, different मुख्तलिफ टाइम के बाद हमें मिल रहे हैं, but it has nothing to do with the possible movement of the receiver or the transmitter. अगर ट्रांसमीटर और रिसीवर मूव कर रहे होते तो ये फिर और कॉम्प्लेक्स फिनोमेना होता। तो अगर ये दोनों स्टेशनरी हैं और मल्टीपाथ हो रहा है, हम कहते हैं कि ये डिले स्प्रेड है, इसमें हमारे पास कुछ मूवमेंट अभी नहीं है, ठीक है। और अगर ये मोबिलिटी भी हो इसमें फिर तो वो हमारे पास पे वो डॉपलर इफेक्ट आ जाता है, वो डिफरेंट फिनोमेना आ जाता है उसमें, ठीक है। और इट इज मोर कॉम्प्लेक्स एज वेल, उसमें भी आ सकता है कि अगर रिसीवर मूव कर रहा है तो जाहिर है फिर जो उसको सिग्नल रिसीव होगा वो डिफरेंट टाइम पीरियड में होगा। Typical value of the delay spread is 3 microsecond in the cities, up to 12 microsecond can be observed. तो ये मोबाइल नेटवर्क्स में हमारे पास इस तरह की डिफरेंट वैल्यूज हैं। GSM can tolerate about 16 microsecond, that is 16 microsecond का मतलब है कि 3 किलोमीटर पाथ डिफरेंस हमारे पास आ सकता है। This 3 किलोमीटर पाथ डिफरेंस is between the line of sight and the non line of sight. तो line of sight और non line of sight के दरमियान अगर up to 3 किलोमीटर का डिफरेंस है डिस्टेंस, तो हम कह सकते हैं कि still the signal will be जो हमारे पास multipath propagation होगी, it will be constructive and will not be destructive in that case, ठीक है। ये कुछ फिगर्स हैं हमारे पास, उसमें ये आपको बताया कि मल्टीपाथ है, मुख्तलिफ ऑब्स्टिकल्स हैं, उसे टकरा के सिग्नल हमारे पास रिसीव हो सकता है, लाइन ऑफ साइट भी हो सकता है लाइन ऑफ साइट ना हो, सिर्फ रिफ्लेक्टेड हमारे पास हो, और उसके लिहाज से डॉपलर इफेक्ट हम कहते हैं, और डॉपलर शिफ्ट is the change in frequency of the wavelength of a wave in relation to the observer who is moving relative to the wave source. जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपके पास ट्रांसमीटर रिसीवर, जो रिसीवर है वो मूव कर रहा है, तो उससे भी हमारे पास कुछ इफेक्ट आएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द मोबिलिटी, और उस इफेक्ट को हम डॉपलर इफेक्ट कहेंगे, ठीक है। Now we will summarize in this lecture. We discuss some of the fundamentals of the networking, also some of the fundamentals of the wireless communication. We discuss the time, the frequency, the phase, OSI model, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की। सिग्नल किसे कहते हैं, मल्टीपल लेवल सिग्नल्स का क्या मतलब है, सिग्नल ज्यादा होने चाहिए, कम होने चाहिए, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की, ठीक है। Then we discuss something about the antennas, the signal propagation, their characteristics, the path loss, ठीक है, attenuation होती है तो क्यों होती है, क्या डिफरेंट फैक्टर्स हैं उस सिग्नल attenuation के लिए, और signal propagation effects. So we discuss all of those things and how they are affecting the data rate as well, ठीक है। आई होप आप लोगों को वो चीजें, वो कॉन्सेप्ट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल विद इट। वी डिस्कस समथिंग अबाउट द बैंडविड्थ एंड द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसीज एंड ऑल दोस बेसिक टर्मिनोलॉजीज व्हिच विल बी रिपीटिंग in the future lectures, and all of you should be comfortable with all those things. If you're not comfortable and you are thinking again and again every time we use it,
then we will have a problem. So I invite you to go through all those concepts again, so that in the future when we are discussing it, you have no problem. ठीक है? So इसमें आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दे, अगर अभी तक जो चीजें हमने डिस्कस की हैं related to this, ठीक है, related to these topics, if you have any questions you can ask. अच्छा, किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है, ये तो अच्छी बात है. If you don't have any questions, maybe I can give you an assignment then, right? So this is the first assignment. As we all know, I've got one of the question maybe. Let me have a look of the question first. अच्छा, ये तो पुराने वो भी आ गया. Due to the obstacle, अच्छा, increasing the frequency have some effect on environment. I cannot get the question. लेकिन अगर आप frequency, increasing the frequency have some effect on environment में तो वो signal travel कर रहा है ना, तो increasing the frequency has no effect on the environment, but the environment has more effect on the signal. तो अगर आपके पास frequency ज्यादा हो रही है, अगर सिग्नल ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई है, तो इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट में जो भी चैलेंजेस हैं वो उसको ज्यादा अफेक्ट करेंगे. ठीक है? अ स्मॉल ऑब्स्टिकल विल बिकम बिग ऑब्स्टिकल फॉर द सिग्नल दैट इज ऑपरेटिंग एट अ हायर फ्रीक्वेंसी. जैसे हमने कहा कि आपका हाथ जो है वो एक मेजर ऑब्स्टिकल बन जाता है अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं इन द इंफ्रारेड. जैसे हम देखते हैं कि एक रिमोट कंट्रोल को आप टीवी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका अगर उस पर हाथ रख लेते हैं तो वो एक मेजर ऑब्स्टिकल बन जाता है. लेकिन वही हाथ जो है आपके मोबाइल के लिए मेजर ऑब्स्टिकल नहीं होता, इसलिए कि उसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो इंफ्रारेड से कम है, उसकी जो वेव लेंथ है वो उससे ज्यादा है, तो इस वजह से वो उस ऑब्स्टिकल को बाईपास कर सकता है. ठीक है? ओएसआई मॉडल और टीसीपी मॉडल के जो लेयर्स हैं वो सेम वर्क करते हैं कि नहीं? मे बी आई शुड नॉट बी आंसरिंग दिस बिकॉज ये बेसिक चीजें हैं जो कि आप खुद देखें. ठीक है? ओएसआई मॉडल बेसिकली रेफरेंस मॉडल है. आई जस्ट से दैट ओएसआई मॉडल जो है वो रेफरेंस लेयर है, 7 लेयर्स हैं. टीसीपी प्रैक्टिकल मॉडल है हमारे पास. ठीक है? और उसमें हमारे पास 4 या 5 लेयर्स डिपेंडिंग अपॉन हम उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं. ठीक है? तो 5 लेयर्स यूजुअली उसमें 5 लेयर्स होती हैं. तो इसका मतलब ये है कि ओएसआई की कुछ लेयर्स को हम मिला देते हैं टीसीपी मॉडल में. ठीक है? कंबाइन कर लेते हैं. जैसे एप्लीकेशन लेयर है तो उसमें हम प्रेजेंटेशन लेयर या सेशन लेयर को कंबाइन कर लेते हैं. ओएसआई मॉडल हमें अलग अलग से बताता है कि इस लेयर में ये होगा, इस लेयर में ये होगा, इस लेयर में ये होगा. लेकिन व्हेन इट कम्स टू द प्रैक्टिकल मॉडल, सो उसमें हम उन लेयर की एक्टिविटीज जो है वो हम कंबाइन कर सकते हैं किसी एक लेयर में भी, तो विच इज डन इन द टीसीपी मॉडल. ठीक है? लेकिन टीसीपी मेन प्रैक्टिकल मॉडल है. अगेन यू शुड गो एंड हैव अ लुक कि ये टीसीपी मॉडल क्या है और ओएसआई मॉडल क्या है, ये काम कैसे कर रहे हैं. आपकी असाइनमेंट का हिस्सा भी होगा ये कुछ ना कुछ हद तक, तो चलें आप वैसे भी इसको देख लेंगे, लेकिन ये बड़ा जरूरी है कि आप देखें इसको और इसको समझें. नाउ दिस इज योर फर्स्ट असाइनमेंट. असाइनमेंट इस वजह से जरूरी है कि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि आप लोगों की असेसमेंट जो होगी वो किस तरह होगी. ठीक है? एग्जाम होगा या सिर्फ असाइनमेंट्स होंगी, या आपके पास जो है सेमेस्टर असाइनमेंट होगी, या मुख्तलिफ और कम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज थिंग्स, मे बी क्विजेज भी हों और कुछ और चीज़ें भी हों, और सब चीज़ों को कंबाइन करने के बाद जो है आपकी जो है वो असेसमेंट हो. ठीक है? तो कोशिश ये करें कि आप अपनी असाइनमेंट ठीक तरीके से करें. हो सकता है इसमें वाइवा भी हो आपके, फिर एंड में हो एक वाइवा हो, मल्टीपल वाइवास भी हो. ठीक है? और ये जो टॉपिक्स हमारे पास असाइनमेंट में है ये आपकी असेसमेंट में इस्तेमाल हो सकते हैं, आपके वाइवा में भी इस्तेमाल हो सकते हैं. अगर मिड टर्म का कोई एग्जाम होता है फ्यूचर में फॉर एग्जांपल, तो उसमें भी ये चीज़ें इंक्लूडेड होंगी. ठीक है? वही चीज़ें आपको आनी चाहिए. अगेन ये बेसिक चीज़ें हैं, इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है. कुछ अगर थोड़ी सी एडवांस भी आएंगी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, अगेन इट इज़ वेरी गुड फॉर यू टू लर्न फ्रॉम दोज थिंग्स. ठीक है? व्हाट इज सिग्नल टू नॉइज रेशो? दिस इज वेरी सिंपल. ठीक है? यू शुड नो. सिर्फ आप इसको डिफाइन करें, इसकी इक्वेशन लिखें. ठीक है? मे बी आई शुड ऐड कि इसकी इक्वेशन भी आप लिखें. ठीक है? डू वी नीड मोर एसएनआर और लेस? डू वी नो लेवल, जो एसएनआर का लेवल है हमें ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एसएनआर एंड डाटा रेट?
ठीक है, SNR अगर ज्यादा है तो डेटा रेट पे उसका क्या इफेक्ट होगा, अगर कम है तो क्या इफेक्ट होगा. What is the relationship between the transmit power of a signal to the SNR? So these 4 questions are about the signal to noise ratio. If you know what is signal to noise ratio, everything else becomes very easy. ठीक है, तो टू द पॉइंट लिखें कि क्या चीज है और आपको फिर समझ आ जाएगी. अगर आपको सिग्नल टू नॉइज रेशो, हमने जो डिस्कशन अभी तक की है ना, इसको मोर और लेस हमने इसका जिक्र किया है, डायरेक्टली नहीं किया लेकिन इनडायरेक्टली हमने इसका जिक्र किया है. सो व्हेन यू गो एंड लुक फॉर द SNR then you will know about it. What is Nyquist theorem? What is Shannon capacity theorem? These are the most fundamental theorems. ठीक है, बहुत बेसिक चीजें हैं जो इस्तेमाल होती हैं बार बार. तो आप ये देखें Nyquist theorem क्या चीज है, Shannon capacity theorem क्या है, and I will ask you especially these two, maybe the whole assignment, but especially these two in the next class as well. What is the fundamental difference between the above two theorems? कौन से, कहाँ पर हम Nyquist theorem इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे हम Shannon capacity theorem इस्तेमाल कर सकते हैं. अगेन अगर आप सिर्फ इनकी इंट्रोडक्शन पढ़ लें तो ये इंट्रोडक्शन ही में ये बता देते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ये कहाँ पे, ये कौन से इन्वायरमेंट में इस्तेमाल होगा और ये कौन से इन्वायरमेंट में इस्तेमाल होगा. तो ये एक जुमले का अगेन इस एन आंसर ऑफ वन सेंटेंस. एंड दिस इज जस्ट कि आप OSI मॉडल वगैरह देख लें, और हमने अपनी से पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था. व्हाट आर द डिफरेंट एड्रेसिंग टेक्निक्स एंड हाउ दे आर यूज्ड ऑन द OSI मॉडल. तो मुख्तलिफ एड्रेसेस कौन कौन से हैं, कैसे हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, और OSI मॉडल में कौन कौन सी लेयर पे वो इस्तेमाल होते हैं. ठीक है, तो कौन सी लेयर पे कौन सा एड्रेस होता है. सो जो फर्स्ट 4 लेयर्स हैं आपको इसके अंदाजा हो जाएगा इस चीज से. ठीक है, तो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल आस्क यू ऑल दोस क्वेश्चंस. एक तो आप सबमिट करेंगे इनको, ठीक है, वो तो अलग है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे इसके बारे में पूछूंगा भी. तो वो इंशाल्लाह फिर आई विल ट्राई टू नोट कि कौन कौन से क्लास में कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है. ठीक है, आपके जो CR हैं, मैं उसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे आप अपने स्टूडेंट्स के सारे नाम और क्लास नंबर्स जो हैं वो मुझे ईमेल करें एक्सेल शीट में, जो जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, जो सीनियर भी हैं वो 4-5 हैं शायद, और बाकी जो नए स्टूडेंट्स हैं सारे, उनके भी नाम जो हैं वो मुझे एक्सेल में दें, ताकि अगर मैं क्वेश्चंस पूछता हूं और आप में से कोई आंसर देता है, कोई आंसर नहीं देता, तो मैं अपने साथ कम से कम क्लास पार्टिसिपेशन भी नोट करता जाऊं कि कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ताकि मेरे पास कोई एक पिक्चर हो कम से कम कि हाउ एक्टिव आर यू इन द क्लास एज वेल. ठीक है, नाउ दिस असाइनमेंट हैज अ वेरी शॉर्ट डेडलाइन. इस असाइनमेंट को आप सबमिट करें. सबमिट आप इसको टर्न इट इन पे करेंगे. ठीक है, turn it in पे maybe I have this details. I will share it with you on in the chat. अभी तक LMS जो है हमारा उसने काम शुरू नहीं किया, तो इस वजह से मैं भी इसको टर्निटिन पे आपको दे रहा हूँ. तो मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया है www.turnitin.com. वहां पे आप एक क्लास में रजिस्टर करेंगे और क्लास आईडी जो है वो गिवन है और इनरोलमेंट की भी आपके पास गिवन है. इन 2 चीजों को आप यूज करेंगे और क्लास को ज्वाइन करेंगे. क्लास में मैंने ऑलरेडी असाइनमेंट दे दिया और आप अपनी असाइनमेंट जो है वहां पर अपलोड कर देंगे टर्निटिन पे. ठीक है, और टर्निटिन पे आप ये ध्यान रखें कि टर्निटिन पे आपको आपकी असाइनमेंट जो है वो रेट होगी, वो उसमें प्लेजरिज्म भी चेक होगी. तो आप यू बेटर डू दी असाइनमेंट बाय योरसेल्फ. अगर आप किसी और के साथ शेयर कर रहे हैं अपनी असाइनमेंट तो आपको नुकसान होगा. ठीक है, वो प्लेजरिज्म की जो रिपोर्ट होगी वो ज्यादा होगी. तो 20% से ज्यादा प्लेजरिज्म नहीं होनी चाहिए, लेस देन 20% होनी चाहिए. सो प्लेजरिज्म इज 20%. ठीक है, नॉट इट शुड बी लेस देन 20%. और अब ये भी याद रखें कि जैसे ही डेडलाइन वो होती है ना, 20% ये चेक करता है टू द रेस्ट ऑफ द रिपोजिटरी, जो जहां जहां पे असाइनमेंट्स लोगों जो जहां जहां जो भी रिसोर्सेज हमारे पास इंटरनेट पे अवेलेबल है, आपकी आपस में जो सिमिलैरिटी होंगी असाइनमेंट्स की, वो जब डेडलाइन रीच हो जाएगी, जब डेडलाइन खत्म हो जाएगी, तब जो है तो बेसिकली ये करेगा. ठीक है, 24th June is the last date. I don't think so 24th June is the last date. If it is, then I will change it. अच्छा, यहाँ पे ये शो है, लेकिन it should not be 24th June. It should be 18th June. So मैं आज हमारे पास क्या डेट है, 16th है.
17th है, चले मैं इसको 18 कर देता हूँ, सही है. So you have like 2 days, including today is 3 days then. ठीक है, 18th June is going to be the. अच्छा चले, आपने टर्निटिन पे कर लिया है, मैंने आई हैव अपडेटेड इट नाउ. अगर आप दोबारा चेक करें तो शायद उसमें 18th जून होगा. सो आई गिव यू 1 more day. ठीक है, सो 2 दिन है आपके पास, इसमें आप असाइनमेंट करें और इसको अपलोड करें. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क नाउ. आई थिंक अदरवाइज इट इज इनफ फॉर टुडे. Excuse me, sir. I have a question. That what is the concept behind wireless charging?